خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں کی تباہ کاریاں جاری، سوابی میں بھی کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی۔ گدون میں جانی نقصان کا خدشہ، پانی کے موزوں لہروں میں کئی مکانات ڈوب گئے۔ جان بچانے کے لیے لوگوں نے چھتوں پر پناہ لی، آبی ریلا کئی گاڑیاں بھی بہا لے گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کوٹا کارویز پل بھی پانی کی نظر ہو گیا ہے، زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے، لینڈ سلائیڈنگ سے گاڑیاں ملبے تلے دب گئی ہیں۔ ڈیپٹی کمشنر کے مطابق ندی نالے بکھرنے سے نشیبی علاقے زیرآب آ گئے، پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور نے سوابی میں امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ سیلاب بنیر کے علاقے کانورا بابا کے دہاڑی دار مزدوروں کا سب کچھ بہا لے گیا، لوگوں کے پاس اب پہننے کو کپڑے تک نہیں۔ نمائندہ سما شہاب الرحمان اس وقت متاثرہ علاقے میں موجود ہیں، ان سے وہاں کے حالات جانتے ہیں۔ شہاب بتائیے گا، کوئی ان مزدوروں کی مدد کو پہنچا ہے اب تک؟ جی دیکھیں، بنیر کے علاقے کانورا بابا میں اس وقت میں موجود ہوں اور یہاں پر زیادہ تر لوگ جو تھے وہ دہاڑی دار مزدور تھے اور سیلاب کی وجہ سے ان کے جتنے بھی گھر تھے وہ زیادہ تر اس کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں۔ ایک دہاڑی دار مزدور کا گھر تھا جو کہ آپ اس وقت اس گھر کے مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لگے ہوئے ہیں اور یہاں کی صفائی کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر کافی زیادہ مویشی موجود تھے، جس میں جو یہ بچے کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر موجود ہے اور کچھ ان کی سیلاب بہا کر لے گیا ہے۔ یہ اس گھر کا مکین بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں سب لوگ کا مشکور گزار ہوں، آپ لوگوں نے غریبوں کا آواز اٹھایا ہے۔ جتنی تباہی کا میں بات کروں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مویشی کا آپ گھر کا حالات دیکھو، یہ دیواریں دیکھو، یہ سارے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تک تو کوئی ضلع انتظام ہے یا کوئی بھی ہمارے طرف سے آواز نہیں اٹھائی، نہ یہاں پہ کوئی مدد کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی سارا کام ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہاں پر جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ ان کے لیے راشن تو یہاں پر لے کر آتے ہیں، لیکن ان کا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کا جو انفراسٹرکچر یہاں پر تباہ ہوا ہے اس کی فوری مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دیں۔ بنیر میں کلاؤڈ برسٹ سے گاؤں بشنوئی کا نشان ہی مٹ گیا، شہداء کی تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ زخمیوں کے علاج کے لیے موبائل اسپتال بھی علاقے میں پہنچا دیا گیا۔ سما کے نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی اسی موبائل اسپتال میں موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ ٹکا، آپ بتائیے یہاں مکینوں کو کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، 20 سانحہ تو ہو گیا، اس کے بعد یقیناً لوگوں کی تدفین بھی ہو رہی ہے، لیکن زخمی جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے سہولتیں میسر کی گئی ہیں۔ خاص طور پہ الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے موبائل ہاسپٹل اس علاقے میں پہنچایا گیا، چونکہ پورا گاؤں ٹراما سے گزر رہا ہے اور اس میں خاص طور پہ الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے، یہاں پہ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لیبارٹری کی سہولت بھی یہاں پہ دستیاب ہے۔ ہر قسم کے یہاں پہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جو پیشنٹ آتا ہے۔ ڈسپینسری ہے جس کے اندر میڈیسنز ہیں اور پیشنٹس کو میڈیسن بھی فری دی جا رہی ہے۔ کتنے پیشنٹس آپ نے دیکھے ہیں اور کس قسم کے پیشنٹس یہاں آ رہے ہیں؟ جی، ہم نے صبح آتے ہی 150 پلس پیشنٹ ابھی تک دیکھ چکے ہیں اور ہمارے پاس ڈیفرنٹ کیٹیگری کے پیشنٹ آ رہے ہیں، اور جن میں ہمارے پاس کوئی ایسے جو انجری کے ساتھ آ رہے ہیں اسٹل، مطلب ان کو ہم فرسٹ ایڈ دے کے ان کو اینٹی بائیوٹک کور دے کے ہم ان کو گھر بھیج رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایسے پیشنٹ ہیں جن کو ہم ریفر کر سکتے ہیں ان کو ریفر بھی کر رہے ہیں۔ یہاں اس مقام پہ الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولت جو ہے وہ دستیاب ہے اور ساتھ ہی ہر طرح کی میڈیسن اور انجیکشن اور خاص طور پہ ہر عمر کے لوگوں کو یہاں دیکھا جا رہا ہے اور ان کی کاؤنسلنگ بھی کی جا رہی ہے۔ یہ ہاسپٹل اس وقت باقاعدہ گاؤں میں موجود ہے، جو گاؤں پورا بہہ گیا اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے وہ یہاں آ کے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں۔ جی، بنیر میں کلاؤڈ برسٹ اور طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، کئی دیہات صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے، لاشوں کی تلاش کا عمل اب بھی جاری ہے، کوئی مدد کو نہیں آیا، اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کام کر رہے ہیں۔ شہریوں نے کے پی حکومت سے شکوے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ بنیر میں ہر طرف تباہی کی داستان، بچھڑنے والوں کا دکھ، ہر شخص اداس، فضا سوگوار۔ بنیر کے علاقے سلطان وس میں درجنوں گھر سیلاب سے متاثر، لوگ زندگی کی جمع پونجی سب گنوا بیٹھے، حکومت سے مدد نہ کرنے کے شکوے، کہا کوئی مدد کو نہیں آیا، اپنی مدد آپ کے تحت گھروں کے ملبے سے بچا ہوا سامان نکال رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین سما ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا، بولے سما ٹیم
तो पहुंच गई, लेकिन हुकूमती इदारे नहीं पहुंचे। ये अल्लाह की तरफ से एक हादिसा था, लेकिन हुकूमत से मैं ये अपील करता हूँ कि वो हमारे साथ इतना से माली ताउन करे, क्योंकि खाना तो हमें तैयार आता है, लेकिन कितने दिन तक आता है। समा वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप भी एनी टाइम पे पहुँचे हैं। ये 2-3 दिन पहले ये वाकयात हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं ये सारे लोग, कुछ लोग अपने मदद आप कर रहे हैं, कुछ हुकूमत के लोग आए हुए हैं, और माशाल्लाह इस इलाके में आस्ता आस्ता तरक्की का काम बहाल होना शुरू हो रहा है। पीर बाबा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के एमएस भी सैलाब की तबाहकारियों पर अफसुर्दा। कहा, अब तक 110 लाशें अस्पताल लाई जा चुकी हैं। जहाँ बहक अफराद में ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। मेरे मेडिकल कैरियर में फर्स्ट टाइम इस तरह लाशें आई, स्पेशली बच्चों की और खवातीन के, कि उनके मतलब जिस तरह लाशें थी वो अल्फाज में बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सैलाब मुतासरीन जिंदगी तो जैसे तैसे गुजार लेंगे, लेकिन बिछड़ने वालों का दुख उन्हें हमेशा सताता रहेगा। बुनेर में हालिया बारिशों और सैलाब के बाद सूरत हाल संगीन, मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदे सलीम खान मुनीरी से, जो इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ के साथ मौजूद है। सलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बुनेर में मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ अकरम शाह साहब मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सानहे में अब तक कितने अफराद जो है और जान बहक हुए। अभी तक जो हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट आई है तो 217 अफराद जो हैं तो वो इसमें शहीद हो चुके हैं, और कुछ 150-200 के करीब जख्मी थे, मामूली जख्मी थे। उनका इलाज करके उन्हें वापस भिजवा दिया गया अपने घरों में। और अभी तक कोई हमारे जितने कैंप्स हैं, मेडिकल कैंप लगे हैं, उनके जरिए भी कोई 4-5 हजार मरीजों का इलाज हो चुका है। जिन जिन इलाकों में नुकसानात हुए हैं वहाँ पे हमारी 2-3 किस्म की एक्टिविटी शुरू हैं। एक तो हम जो लोग लापता हैं उनकी रिकवरी में सियासी और समाजी कारकुनान वो भी उसमें लगे हुए हैं। हमारा ये जो कंट्रोल रूम है, यहाँ पे हमारे साथ मिनिस्टर फखर जहान बादशाह जो मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हैं वो डायरेक्ट निगरानी ऑपरेशन की कर रहे हैं। और रोजाना रात को हमारी जो मीटिंग होती है उसमें हमारे MNA साहब बैरिस्टर गौर खान साहब जो हैं वो खुद भी उसमें शरीक होते हैं। और चिक जो लोग शहीद हुए उनके चिक भी इंशाल्लाह कल दोपहर तक सबको पहुंच जाएंगे घरों में। रावलाकोट में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। गाड़ी बरसाती नाले में बहने से यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ की खातून लेक्चरार जान बहक हो गई। रेस्क्यू टीमों ने गाड़ी और लाश को निकाल लिया। लैंड स्लाइडिंग से मुख्तलिफ इलाकों का शहर से राबता मुनक़ते हो गया। महकमा तालीम ने हंगामी हालात के पेश नज़र तालीमी इदारों में 23 अगस्त तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया। मिंगोरा के स्कूल टीचर ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। मोहम्मद अय्यास ने सैलाब के दौरान अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर 5 अफराद को बचाया, जबकि दूसरी जानिब रिहायशियों ने शिकवा किया है कि अभी तक हुकूमत या इंतजामिया ने इलाके का दौरा तक नहीं किया। स्वात से सैयद शहाबुद्दीन अपनी रिपोर्ट के साथ। गोरा का मोहल्ला शहीदाबाद, जहां खौफनाक सैलाब का रेला दाखिल हुआ। सरकारी स्कूल टीचर मोहम्मद अयाज का मकान 10 फीट ऊंचे पानी में डूब गया। पड़ोस की बेवा खातून ने मदद के लिए पुकारा। अयाज ने जान की परवाह किए बगैर फंसे हुए 5 अफराद की जान बचाई, लेकिन मैके आई खातून की बेटी अपने 3 बच्चों के साथ पानी में डूब गई। पूरा मंजर अपनी आंखों से देख लिया। मैं तो असल में ड्यूटी पे था। मैं जब आया 6 बजे का टाइम था तकरीबन, तो सब कुछ तो खराब हो चुका था। सब ये जब देखा तो घर का हालात सब कुछ, यानी जो सा फर्नीचर था और इतना सब खराब हो गया। उसी इलाके में शहर की कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट भी सैलाब की लपेट में आ गई। करोड़ों रुपए का सामान पानी में बह गया। बचा कुचा कपड़ा रेत और मिट्टी से तबाह हो गया। खाने पीने का अशिया नहीं मिलता है, लोग मजबूर है, खाने पीने का कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि हुकूमत आया नहीं है। क्योंकि ये रास्ता आप देखो, रास्ता में मिट्टी पड़ा हुआ है, तकरीबन आने जाने का रास्ता नहीं है। मोहल्ला शहीदाबाद के रिहायशी कहते हैं 4 दिन गुजरने के बावजूद कोई इमदादी टीम नहीं पहुंची। बिजली और गैस मुअत्तल, रास्ते बंद हैं, घरों में पानी और मिट्टी भरी हुई है। मकीन खाने और पानी को तरस रहे हैं। मोहल्ले में जितने भी घर है ना वो सारे डूब चुके हैं। और मैं बजाते खुद आपको बताऊंगा, हमारा जितना घर में सोना था, पैसे थे, नकदी थी, वो सारा सैलाब में बह गया है। इस तरफ से सैलाब आए, पूरे दरवाजे सब कुछ जो है वो निकल गए हैं। और जब वापस पानी निकल रहा था तो उस टाइम पे पूरा सामान जो है वो नदी में इस तरफ चला गया है और घर में भी जो है कुछ भी नहीं है।
मोहम्मद अयाज और दीगर सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ तो कर रहे हैं, लेकिन इदारों की गफलत ने सैलाब मुतासरीन की बेबसी को मजीद बढ़ा दिया। यही वजह है कि शहीदाबाद के मकीन आज भी मदद के मुंतजिर हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा सवात। पंजाब में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल, तबलीगी जमात के 7 अफराद रेले में फंस गए। मकामी अफराद ने 2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद रेस्क्यू कर लिया। बारिश और सैलाबी रेलों से मकानों की छतें और सरकारी स्कूल की दीवारें भी गिर गईं। जिला इंतजामिया ने स्कूल में छुट्टी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म की सैलाब ज़दा इलाकों में आखिरी मुतासरा शख्स की मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तक मुतल्लिका वफाकी वज़रा को वहीं क़याम करने की हिदायत। वफाकी इदारों को भी मज़ीद मुतहर्रिक होने का हुक्म। कहा ये सियासत का नहीं, लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखने का वक्त है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी इदारों को मजीद मुतहर्रिक होने की हिदायत। मुतल्लिका वफाकी वज़रा को कहा आखिरी मुतासरा शख्स की इमदाद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तक मुतासरा इलाके न छोड़े। ये सियासत का नहीं, मुतासरीन की खिदमत का वक्त है। वफाकी हुकूमत कोशिश करेगी कि जैसे जैसे नुकसानात हो रहे हैं, कम अज़ कम जो वफाकी मदद है वो वहाँ तक पहुँचे और उनके वरसा को, जो लोग शहीद हुए हैं और जिनकी इमारतें तबाह हुए हैं, उनको दोबारा रिस्टोर करने के लिए भरपूर अंदाज में सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। कोई तफरीक नहीं की जाएगी कि वफाक क्या है और सूबा क्या है। इजलास में वफाकी काबीना ने अपनी 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत खजाना और NDMA को हिदायत की कि मुतासरा इलाकों में शाहराहों की बहाली के लिए तमाम जरूरी वसाइल फराहम किए जाएं। चेयरमैन NDMA ने मानसून के 2 से 3 नए स्पेल्स, क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर्स पिघलने के मुमकिन खतरात से भी आगाह कर दिया। हमारे ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से शुमाली इलाकों में जहाँ पर ये हमारे पहाड़ और ग्लेशियर्स मौजूद हैं, तो यहाँ से जब पानी पिघल कर आएगा तो इसके फुटहिल्स में, दामन में जो तमाम नशेबी इलाके हैं, जिसमें GB, KPK, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और कुछ रावलपिंडी इस्लामाबाद के भी मुल्हिका इलाके, ये उसकी जद में आएंगे। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 400 रेस्क्यू ऑपरेशन और 456 रिलीफ कैंप्स कायम किए जा चुके हैं। मुहतात अंदाजे के मुताबिक 12.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की अमलाक को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को फौरी तौर पर नुकसानात का हतमी जायजा और मुतासरीन में इमदादी अशिया की तकसीम का जामे लाहे अमल पेश करने की हिदायत की। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इस वक्त सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। बताएं कि तफ्तीश के तकाजे कैसे पूरे होने हैं। वो बेहतर होगा सर तो उससे आपके कन्विक्शन रेट्स बेहतर हो जाएंगे। लेजिस्लेशन में भी सर अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, कवानीन बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी ओवरलैपिंग की वजह से उन कवानीन में कुछ नकाइस। वे फॉरवर्ड सर ये है कि जैसे अली ज़फ़र साहब ने कहा है सर, ये वो मामलात हैं जिनके लिए लोग आपको इलेक्ट करके यहाँ भेजते हैं। बिजली के कनेक्शन और गैस के चूल्हे जलाने के लिए तो सर लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। हमारा तो वो काम ही नहीं है। गलियां नालियां बनाने के लिए तो काउंसलर्स होने चाहिए सर, हमारा नहीं वो काम। हमें तो इन इश्यूज पे बैठ के कानून साजी करनी है। माहौल को संजीदगी की तरफ मैं बिल्कुल साफ दिल से ये बात कर रहा हूँ। स्टैंडिंग कमेटीज में इनको डिस्कस होना चाहिए। आई फुली एग्री विद पार्लियामेंट्री लीडर कि ये मामला वहाँ रेफर किया जाए। हम कमेटी में बैठे, हमने सर 108 के करीब तरामीम हैं फौजदारी कवानीन में, जो मैंने 3.5 साल काम करके, उसमें मेरे बहुत सारे दोस्तों के भी इनपुट शामिल है। हमने 108 तरामीम दी हैं नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में, वो पेंडिंग है। सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे हैं, जो आपने मुलाहिज़ा फरमाया। गिलगित बल्तिस्तान में भी आर्मी रिलीफ ऑपरेशन जारी है। जदीद मशीनरी मौके पर पहुंचा दी गई। मौसम की खराब सूरत हाल और पानी के शदीद बहाव के बायस इमदादी और बहाली के काम में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। सैलाब के बायस करदू को मुल्क के दीगर इलाकों से मिलाने वाली मरकजी सड़क अस्तक के मकाम पर बह गई थी, जिसकी मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही सड़क की मुरम्मत मुकम्मल करके इस करदू का मुल्क के दीगर इलाकों के साथ राबता बहाल कर दिया जाएगा। पीछे रहनुमा असद कैसर ने मौसमी रेडार्स के नस्ब ना होने को संगीन गफलत करार दे दिया। अपने बयान में कहा कि 3 साल से मंसूबे के टेंडर्स मुकम्मल नहीं हो सके। वर्ल्ड बैंक ने मौसमी रेडार्स के लिए फंड्स फराहम किए थे। समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत इतनी गफलत क्यों बरत रही है। कौमी असम्बली में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करूंगा।
وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اتنا بڑا سانحہ ہوا، کسی نے منفی سیاست نہیں کی۔ کراچی یا سندھ کے کسی شہر میں کچھ ہو جائے تو سڑکوں پر نکل کر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سندھ حکومت نے اربن فلڈنگ کے لیے تمام انتظامات کر لیے۔ KPK میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو کہیں سے بھی کسی جماعت نے اس کو نیگیٹولی جا کے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ میں کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اگر کراچی میں یا صوبہ سندھ کے کسی اور علاقے میں کوئی چیز ہو جائے تو بجائے اس کے کہ متاثرین کی وہ مدد کریں، وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ صوبہ سندھ میں یا خاص طور پہ کراچی میں بھی امکانات ہیں کہ بارشیں زیادہ ہو جائیں، اربن فلڈنگ ہو جائے، تو اس پر جو ہیومنلی پاسبل ہے، جو ایک انسان کر سکتا ہے، جو حکومت کر سکتی ہے، جو ادارے کر سکتے ہیں، اس کا ارینجمنٹ۔ بنیر میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے جانے والے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں شہید پائلٹ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ سردار شاہد سلطان کی نماز جنازہ ایبٹ آباد کے FG گرلز اسکول میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سول سوسائٹی، سیاسی شخصیات، پولیس افسران سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر پولیس کے چاقو چابند دستے نے شہید کے جسد خاکی کو سلامی پیش کی، جس کے بعد انہیں آبائی علاقے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ پائلٹ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ سردار شاہد سلطان کے حادثے میں شہادت پر علاقے کی فضا سوگوار ہے، جبکہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی جانب سے تعزیت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شہید نے سوگواروں میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں اور ایک بیوہ چھوڑی ہیں۔ شہید پاک فوج UN کمیشن میں رہے، سگنل کور سے تعلق تھا اور 4 سال پہلے ریٹائر ہوئے۔ شہید سردار شاہد سلطان KP حکومت میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ خدمات سر انجام دے رہے تھے اور 4 روز قبل ریسکیو کارروائیوں کے دوران ہیلی کاپٹر کریش میں شہید ہوئے۔